हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th एनआईएस बोर्ड का जो है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान जो चैप्टर करेंगे आज हम 12वां चैप्टर, जिसमें हम करेंगे आज एग्रीकल्चर इन इंडिया यानी भारत में कृषि। जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है हर एक क्लास के बच्चों के लिए, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हो, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हों, इवन कि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और कई मानने में हर जगह जो है अपना महत्व को ये रखेगा। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। एग्रीकल्चर इन इंडिया, our next chapter. There's an important agriculture in India. The first one point arrive here: types of farming in India. There is important types of farming in India. You know that India has a diversified is a topography. You have already learned about it in the lesson of physiographics of India. The country has a Himalayan mountain ranges extending from Jammu and Kashmir in the west to be Arunachal Pradesh in the northeast. They have a hill ranges in the form of Eastern Ghat and Western Ghat. You know, India has one of the largest plain area of the world in the form of Indo-Ganga plain. Central part of India is dominated by the plateau area. Apart from a variation in a landform, the country has a varieties of climatic condition and the soil types. This is important. The country has a varieties of climatic condition and soil types, and this physical variation along with the other factor like ability of irrigations and use of machineries, modern agriculture input like a high yard varieties means HYV. That is the most important on this time. Of the seed and insecticide and pesticides has a play there is respectively is a role in the evolution of the different farming practice in India. So of the major types of farming discussion and below here, one point is important here. There is a modern agriculture. There is a modern agriculture mean green revolution. The green revolution is varied about here. The high yielding variety of use of seeds, insecticide, pesticide, and the new technology. There is a green revolution, and the revolution and different farming practice in India. The first point here, a substance and commercially farming. Substance and commercially farming. The majority of farmers in India practice is a substance farming, and this means of farming from oven consumption. In other words, the entire production is largely consumed by the farmers and their family, and they do not have any surplus to be sold in the market. In this type of farming, land holdings are small and fragmented. Cultivation techniques are primitives and simply. In other words, there is a total absence of modern equipment like a tractor and a farm's input like a chemical fertilizer, insecticide and pesticides also.
In this farming, farmers mostly cultivate cereals is along with the oil, seeds, pulses, vegetables, and sugarcane. This farming is a commercially farming. It is most be positive of substance of farming. There is the commercially is a commercially farming. In this case, the most of produce is sold in the market for earn money. The farmer mainly is growing for the crops here on a field of commercially farming because this is give us a market for the earn of money. The important. In this system, farmer use input like irrigation, chemical fertilizer, insecticide, pesticides, and high yard variety of seed, etc. Some of the major commercial crop growings in a different part of India are cotton, jute, sugarcane, groundnut, etc. That's important. It's a major commercial crop like cotton, jute, sugarcane, groundnut. Rice farming in Haryana is mainly for a commercially purpose as the people of this area are predominantly is wheat eaters. However, in the east and the northeastern state of India, rice cultivation would be a largely of substance types. It's important also. The next year, intensive and extensive farming. Intensive and extensive farming, the basic difference between the two types of farming in the amount of production per unit of land. In a comparisons with the temperate area of USA, Canada, and farmer of USSR, India does not be practice extensive cultivation. When we use a large patch of land for cultivation, then we are called extensive farming. Here total production may be high due to large area but per unit and production is low. It is important total productions may be high due to the large area but per unit of production is low. Intensive farming requiring high production per unit of land. The best example of intensive cultivation is Japan, where the abilities of land for the cultivation is very limited. And similar kind of situations can be observed in the state of Kerala in India. That is important intensive and extensive farming. And the next year, plantation farming. Let's see plantation farming. Here on screen, there are plantation farming. It is on a state where is a single cash crop is growing for a sale, and this type of agriculture involved the growing and processing of a single cash crop. The purely is meant for a sale. There are tea, coffee, rubber, banana, and spicy are all example of plantation of crops. Most of these crops were introduced in the India by the British in the 19th century. There is important plantation farming. There are British in 19th century, mostly of growing on the field. The next farming here, mixed farming. Mixed farming is important. It is a situation in which the both arising crop and earrings or animals are carried on a stimulantly. Here farmers engaged in a mixed farming are the economical better off than other. All classifications are based on nature and purpose of farming. It may be overlap. For example, banana is a plantation types of farming. It can also be classified as a commercial farming. That is important. Banana is a plantation farming, but it is also be classified as a commercial farming. That is important. Let's understand here a different type of revolution. That is the most important here. Here on the screen there are different type of revolution. So many exams is asking this type of question. The first of here a green revolution. The green revolution it stands for a major technological as a breakthrough is India is based on improved seed of high yard variety, equate and ensure supply of water for irrigation and increasing and appreciate application of the chemical fertilizer for increasing
agriculture production. This is known as the Green Revolution. But next here, White Revolution. White Revolution is mainly here, it stands for the remarkable increasing in a milk production and establishment of a national milk grade, the removing regional and seasonal imbalance. Among the technological input are crossbreeding of endogenous cow with a high milk yielding is a European breeds, and pasteurization of milk for keeping it for a long duration. That's an important method here. Pasteurization, there's a pasteurization of milk of keeping long durations. The collection of quality milk for member in a rural area and refrigerated transport system which help us sending milk for of our metropolitans are center both by road and rail. That is the most important here, a white revolution. And the next year, blue revolution. Blue revolution refer here to big rise of catching of freshwater marine fish. This is important blue revolution here. That it is referred to be a big rise of catch of fresh water and marine fish. And also here, indigo production. The blue revolution there, or indigo revolution also. The yellow revolution it is referred to remarkable stay and ensure supply of priorities of product. And the next year, pink revolution. The pink revolution is referred to be a considerable rise in the production of quality of apples, particularly in the state of Himachal Pradesh and Jammu Kashmir. There is a pink revolution. The refer here apple production. Yani means yellow revolution here of priorities production, and blue revolution refers here indigo and a fish revolution, and white revolution refer here a milk production, and green revolution refers here agriculture revolution. There is a most important revolution on your screen. आज जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं भारत में कृषि, ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है जो आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ है, भारत में कृषि। देखिए ये टॉपिक कई मानने में हर जगह काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, इसलिए आपको ध्यान से समझने की आवश्यकता है। जब तक आप ध्यान से नहीं समझिएगा, सोचिएगा नहीं, तब तक ये समझ जल्दी नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें पहले पॉइंट के अंतर्गत भारत में खेती के प्रकार, भारत में आखिर कितने प्रकार के खेती किए जाते हैं, तो इसी पे हम यहाँ पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे हर एक पहलू पे। मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो है बात यहाँ पर छूता रहेगा, लेकिन आपको इसके लिए ध्यान से समझने की आवश्यकता है। आपको पता है कि भारत जो है संस्कृतियाँ विविधताओं का देश है, ये तो आप जनरली हर वीडियो में जानते ही हो कि भारत एक विभिन्नताओं भरा देश है। यहाँ पर बहुत चीज़ें जो है विभिन्नताओं का भरा माना जा सकता है। आपने पहले से भारत के जो है भू आकृति पाठ में इसके बारे में हमने बहुत विस्तारपूर्वक चर्चा किया, जो पिछले चैप्टर था भारत में भू आकृति, इसमें बहुत कुछ हमने जाना। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि कहते हैं हर चीज़ जो है सुचारू रूप से करने से ही आगे हम बढ़ सकती हैं। आप सोचिएगा कि बीच बीच से कहीं कहीं कुछ कुछ हम देख लेंगे तो हमारा सिलेबस क्लियर हो जाएगा, तो शायद आप गलत फहमी में हो। कहते हैं सिलेबस का मतलब होता है कि आपको सभी चैप्टरों को ध्यानपूर्वक समझने की आवश्यकता है, तब जाके आप अच्छे से अच्छे विद्यार्थी भी बन सकते हो और एग्ज़ाम में अच्छे अंक भी प्राप्त कर सकते हो। और कहीं कहीं से अधूरा वीडियो देखते हो तो ये समझ नहीं आता है। तभी तो अतिरिक्त सेंटर एक बात रखता है, इंपॉर्टेंट रखता है कि आपको जो है पूरा सिलेबस एक साथ होता है, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, चाहे दोनों एक साथ हो। तो इतना बड़ा कोशिश इसलिए होता है कि बच्चों को कोई भी चीज़ अछूता न रह जाए। ठीक है, पूरा चैप्टर एक साथ देख लें, अगर नहीं है तो उसको पाठों में देख लें, तो हर चीज़ का प्रावधान आपके लिए ही किया गया है। और आप सोचिएगा कि मैं कहीं से कहीं देख लूँगा तो शायद वो सारी बातों को अच्छे से आप अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ज़रूरी है कि बच्चों हर एक वीडियो को अच्छे से समझो, फिर जाके आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। कहते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के पश्चिम में जम्मू कश्मीर से उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। देखा जाए तो आपको पता है कि हिमालय पर्वत जो है पूरे क्षेत्र में जो है उत्तरी पूर्वी साइड में फैली हुई है और ये अरुणाचल प्रदेश तक है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के रूप में पहाड़ी श्रृंखला भी है। अगर हम बात करें पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, तो ये पहाड़ी श्रृंखलाओं के लिए जाना जाता है।
क्या आप जानते हैं कि भारत सिंधु गंगा मैदान दुनिया का सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र में से एक है? अब देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रश्न आता है। अगर कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इसमें से ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का सिंधु गंगा मैदान दुनिया का सबसे बड़ा जो है मैदान क्षेत्र है। भारत के मध्य भाग में पठार क्षेत्र का प्रभुता है, यानी भारत के मध्य भाग में हम देखें तो पठार जो है अपना दबदबा बनाए रखा है। बात करें भू आकृतिक विविधताओं के अतिरिक्त जो है भारत में जलवायु और मृदा में भी काफ़ी विविधता देखने को मिलता है, और भारत में भौतिक विविधताओं के साथ साथ अन्य कई कारक जैसे सिंचाई की उपलब्धता, मशीनरी का उपयोग, आधुनिक कृषि निवेश तथा बीजों का उच्च उपज किस्में यानी HYV, कीटनाशक आदि का विविध खेती पद्धति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। देखिए भारत ने अगर ग्रीन रेवोल्यूशन को प्राप्त कर पाया है तो कहीं ना कहीं आधुनिक कृषि का ही श्रेय जा सकता है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात रहती है बीज का। आज भारत में जो बीजों का उपयोग हो रहा है वो बीज जो है HYV हो रहा है, यानी बीजों का उच्चम उपज किस्में यूज़ किया जा रहा है। साथ जो है कीटनाशक, खरपतवार नाशक, बहुत से जो है केमिकलों का यूज़ किया जा रहा है, जिससे कि हम हरित क्रांति को छू पाए हैं, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसके कारण जो है भारत में जीवन संभव हो पाया है। पहले आपका समय देखिए, उस समय भूखमरी की हालत हर समय बना रहता था, लेकिन शायद अब भारत में बहुत कुछ सुधार हुआ है, और ये सब हुआ है आज नए नए मशीनों का उपयोग करके, ठीक है, आधुनिक कृषि का निवेश करके और बीजों का उपयोग करके, कीटनाशक और न जाने कितने तरह के जो है उपकरणों का उपयोग करके हमने जो है ग्रीन रेवोल्यूशन को प्राप्त किया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहता है। अब इसी के खेती के कुल प्रकारों की चर्चा हम निम्न प्रकार से करेंगे कि खेतों के कुल प्रकार कितने हैं, तो इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक आगे चर्चा करेंगे। तो आप बने रहे त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ। यदि पहले टाइप की हम बात करें तो ये है निर्वाह और वर्जनिक खेती। निर्वाह और वर्जनिक खेती, भारत का अधिकांश किसान निर्वाह खेती करते हैं। निर्वाह का मतलब होता है अपने जीवन चलाने के लिए, और वर्जनिक खेती का अर्थ होता है जो हम व्यापार के लिए जो है कृषि लगाते हैं। तो आप समझ गए हो, निर्वाह का मतलब जो हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यूज़ करते हैं, और वर्जनिक का अर्थ होता है जिससे हमें पैसा प्राप्त होता हो। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। इसका मतलब यह हुआ कि खुद के उपयोग के लिए खेती करना, और दूसरे शब्द में पूरे उत्पादन का बड़ा हिस्सा किसानों और उनके परिवार द्वारा उपभोग कर लिया जाता है, यानी बहुत ही कम मात्रा में जो है ये लोग कुछ सामान को बाहर बेचते हैं, इसलिए ये निर्वाह कृषि कहलाता है। बाजार में बेचने का जो है अधिशेष नहीं होता है। निर्वाह कृषि में जो है बाजार में बेचने के लिए कुछ भी अधिशेष नहीं रहता है, और इस प्रकार खेती में ज़मीन के जोत छोटे और खंडित होते हैं। आपको पता है कि भारत में जो है बंटवारे की बहुत बड़ी जो है प्रचलन हमारे समाजों में बनी रहती है। अगर दो भाई हैं तो अगर एक खेत है तो उसको दो टुकड़े कर दी जाती है, उसके आगे ऐसे ऐसे कितने टुकड़े किया जाता है। तो ऐसे खेतों में जो है वर्जनिक खेती करना संभव नहीं रहता है। ऐसे खेतों में सिर्फ हम निर्वाह योग्य यानी अपनी आवश्यकताओं के लिए ही कृषि कर सकते हैं, क्योंकि ज़मीन छोटी होती है, खंडित होती है, तो इसमें अधिक मात्रा में कोई भी चीज़ का उत्पादन करना और यातायात के लिए ले जाना बड़ा ही दुर्लभ कार्य होता है। खेती तकनीकी अधीन और सरल किस्म के हैं। दूसरे शब्दों में आधुनिक उपकरण जैसे ट्रैक्टर एवं खेती निवेश तथा रासायनिक उर्वरक का पूर्णतः अभाव। इस प्रकार की खेती में किसान ज़्यादातर अनाज के साथ तिलहन, दाल और सब्जियां ही उगाते हैं, क्योंकि खेत ये बहुत छोटा होता है और ये अपनी आवश्यकताओं की चीज़ ही इसमें उगाने की कोशिश करते हैं। व्यापार के लिए इसमें किसी भी प्रकार का कृषि नहीं रहती है। तो ये निर्वाह योग्य कृषि होती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब वर्जनिक कृषि के बारे में देखते हैं, चलिए। उसके पश्चात आता है वर्जनिक खेती। देखिए, वर्जनिक खेती का मतलब ही होता है जो हम पैसों के लिए खेती करते हैं। इसमें हमें सामानों को जो है बाहर बेचते हैं, वो निर्वाह के लिए था और ये हम बाहर बेचने के लिए करते हैं। इस मामले में उत्पादन का अधिकतम भाग जो है धन प्राप्ति के लिए बाजार में बेचा जाता है, यानी जितना हम इसको खेती करेंगे उतना ही हमें धन प्राप्त होगा। और इस प्रणाली में किसान को सिंचाई, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और बीज की उच्च उपज वाली किस्मों का उपयोग करते हैं। जनरल सी बात है, अगर आप बाहर खेत के फसलों को बेचना चाहते हो तो आपको जो है उसको उच्चतम उत्पादन भी करना पड़ेगा,
और उच्चतम उत्पादन करने के लिए सिंचाई होना चाहिए, रासायनिक उर्वरकता होनी चाहिए, कीटनाशक, बीज की उच्चम किस्म होनी चाहिए, तभी जाके जो है खेती अच्छी से अच्छी होगी और इससे हमें धन भी अच्छे से अच्छे प्राप्त होगा। भारत के विभिन्न भागों में उगाई जाने वाले फसलों में कपास का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। और कपास जो ऐसे फसल हैं जो काफ़ी कमर्शियली तौर पे काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है अपना स्थान। इवन कि गन्ना, मूंगफली आदि भी अपना महत्व बनाए हुए हैं। कहते हैं हरियाणा में चावल की खेती मुख्य रूप से व्यवसायिक उद्देश्य के लिए ही किया जाता है। हरियाणा में अगर चावल की खेती की जाती है तो सिर्फ व्यवसाय करने के लिए की जाती है, उपभोग करने के लिए यूज़ नहीं की जाती है, क्योंकि इस क्षेत्र के लोगों का मुख्य भोजन गेहूँ है। फिर भी वो चावल करते हैं, चावल वो बेचने के लिए करते हैं क्योंकि उनका मुख्य भोजन जो है गेहूँ ही है। यद्यपि भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों में चावल की खेती निर्वाह प्रकार की है जो बड़े पैमानों पर की जाती है। यानी पूर्वी राज्यों में चावल की खेती जो है निर्वाह के लिए किया जाता है, जो बहुत ही बड़े पैमानों पर की जाती है और ये पूरे भारत का जो है पोषण भी करती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात आता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष गहन और विस्तृत खेती। गहन का मतलब होता है जिसमें एक या एक से अधिक कृषि की जाती है, यानी बहुत से फसलें लगाई जाती हैं। खेती की इन दो प्रकार के जो है बीच बुनियादी अंतर जो है उत्पादन की राशि के प्रति इकाई भूमि पे है। यानी गहन और विस्तृत खेती जो होती है बुनियादी तौर पर देखा जाए तो इस पे जो है इनके क्या अंतर होती है उत्पादन करने की। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और पूर्वी सोवियत संघ के समशीतोष्ण क्षेत्रों के साथ तुलना में भारत विस्तृत खेती अभ्यास नहीं करता है। यानी देखा जाए अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें, कनाडा और पूर्व सोवियत संघ की, तो आपको पता है ये सारे के सारे जो है विकसित राष्ट्र हैं और यहाँ पर देखा जाए तो उच्चतम तौर पर जो है कृषि की जाती है, लेकिन भारत में विस्तृत खेती अभ्यास नहीं करते हैं। अब देखिए अमेरिका की बात करें, अगर संयुक्त राज्य की बात करें, कनाडा की बात करें, पूर्वी सोवियत संघ की बात करें, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण मॉडर्नाइज दुनिया है और यहाँ पर कृषि करने की उच्चतम पद्धति है। लेकिन देखा जाए तो भारत अभी भी इन चीज़ों में काफ़ी पिछड़ रखी है। जब हम खेती के लिए देश के बड़े क्षेत्र का उपयोग करें तो हम इसे विस्तृत खेती कहते हैं, क्योंकि ये विस्तृत खेती कहलाता है। यह बड़ा क्षेत्र होने के कारण कुल उत्पादन ज़्यादा हो सकता है, परंतु प्रति इकाई भूमि उत्पादन कम ही होता है। व्यापक खेती भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखी जा सकती है। यानी भारत में देखा जाए अधिक पैमानों पर खेती अगर होती है तो वो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही होती है। बाकी क्षेत्र में बहुत ही कम होती है और होती भी है तो उन्हीं राज्यों में ही खपत भी हो जाती है। गहन खेती में प्रति इकाई भूमि के उत्पादन ज़्यादा अंकित किया जाता है। जापान में गहन खेती का सबसे अच्छा उदाहरण है, जहाँ खेती के लिए भूमि की उपलब्धता बहुत सीमित है और इस प्रकार की स्थिति भारत के केरल राज्य में देखी जा सकती है। यानी गहन कृषि करना के जो प्रावधान है वो केरल राज्य में है, क्योंकि केरल राज्य में देखा जाए तो यहाँ खेती की भूमि की उपलब्धता बहुत ही सीमित मात्रा में है, क्योंकि आपको पता है केरल बहुत ही छोटा एरिया है, समुद्र किनारे है, तो यहाँ पर बहुत ही कम कृषि देखने को मिलता है और यहाँ पर गहन खेती का ही प्रावधान है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है वृक्षरोपण खेती। देखिए वृक्षरोपण भी एक तरह का खेती होता है, क्योंकि इससे हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। आपको पता है कि हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें वृक्ष से ही प्राप्त होती है। कहते हैं बगान खेती एक कृत्रिम और स्थापित प्रकार है। यानी बगान खेती जो होती है एक तरह कृत्रिम है, ये मानव निर्मित है, क्योंकि ये इसमें प्रकृति का कोई स्थान नहीं है, ये कृत्रिम है और स्थापित प्रकार की है। और ये एक बगान है जहाँ एक ही नगद फसल की बिक्री के लिए उगाया जाता है। इस प्रकार कृषि में एक ही प्रकार के नगद फसल का उगाना एवं प्रसंस्करण जनित होती है, जिसे बेचने के लिए किया जाता है। वृक्षरोपण खेती जो होती है मैक्सिमम देखा जाए तो बेचने के लिए ही किया जाता है। जैसे आपको पता ही है चाय, कॉफ़ी, रबर, केला और मसाले, ये सारे के सारे वृक्षरोपण फसलों के उदाहरण हैं जो सिर्फ बेचने के लिए उपयोग किया जाता है। और इन फसलों में अधिकांश भारत में 19वीं सदी में अंग्रेज़ों द्वारा शुरू किए गए थे। आपको पता है चाय, कॉफ़ी ये सब जो है अंग्रेज़ों के समय ही शुरू किया गया था। इवन कि भारत में अगर अंग्रेज़ आकर्षित हुए थे तो वो हुए थे मसालों के अंतर्गत। तो आप समझ सकते हो कि सब अंग्रेज का ही देन है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है मिश्रित खेती। जैसे नाम से ही आपको इसकी बात समझ में आ गई होगी कि यह मिश्र फसल होगा, यानी एक से अधिक फसल एक ही जगहों पर लगाई जाती होगी। यह एक स्थिति है
जिसमें फसलों के उगाना और पशुपालन दोनों एक साथ किया जाता है। अब देखिए इसका क्या फ़ायदा होगा। अगर आप फसल लगा रहे हो, फसल से जो भी चीज़ प्राप्त होती है, जो हम फल इकट्ठा कर लेते हैं, बाकी जो मिलती है वो पशुओं को दे देते हैं, और पशुओं के जो गोबर होते हैं वो खेतों को मिल जाती है। तो इसमें दोनों को ही काफ़ी फ़ायदा होता है और काफ़ी बेहतर जो है इसमें आर्थिक सुधार किया जा सकता है। यह मिश्रित खेती में लगे किसान आर्थिक रूप से दूसरे की तुलना में काफ़ी बेहतर होते हैं। सभी प्रकार खेती की प्रकृति और उसके उद्देश्य पर आधारित होता है और कभी कभी अंश क्षणिक हो सकता है। उदाहरण के लिए केले की खेती एक बागान प्रकार की है, यानी केले की खेती देखा जाए तो एक बागान प्रकार की है और एक व्यवसायिक खेती के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है, यानी इसको व्यापार के लिए भी उपयोग किया जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखिए आगे और भी महत्वपूर्ण है, हमने जानना है कि भारत में कितने प्रकार के रेवोल्यूशन को हम प्राप्त कर पाए हैं, यानी कितने तरह की क्रांतियाँ जो है हुई है कृषि के अंतर्गत और जीवन सुधार के अंतर्गत। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी क्रांति है जो हमारे खेतिहर किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुए हैं। तो देखते हैं पहला क्रांति कौन सी है। देखिए यहाँ पर जो पहला क्रांति आया है वो है हरित क्रांति। इसे नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये फसलों के उत्पादन के अंतर्गत है। हरित क्रांति का अगर वास्तविक अर्थ जानना चाहिएगा तो यही है कि फसलों के उत्पादन में जो है वृद्धि करने के लिए हम जो नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, नए बीजों का उपयोग करते हैं, आधुनिक मशीनों का उपयोग करते हैं, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करके जो फसलों के उत्पादन में वृद्धि करते हैं उसे हम हरित क्रांति कहते हैं। ये तो हमारे अपने लैंग्वेज में हुआ, लेकिन देखा जाए तो भारत में ये कृषि वृद्धि के लिए एक प्रमुख तकनीक सफलता पर आधारित है। अधिकांश उपज देने वाले किस्मों में काफ़ी सुधारे की बीजों में सुधार की गई है और सिंचाई के लिए पानी की पर्याप्त और आश्वासन आपूर्ति भी हुई है। पहले सिंचाई न होने के कारण जो है कृषि खराब होती थी, लेकिन आज हमें ऊपर आसमान में देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत से साधन हैं जिससे हम खेतों का सिंचाई बहुत ही सरलतापूर्वक हम कर सकते हैं। पहले के समय में किसानों को जो है सिंचाई की जो है साधन उपलब्ध नहीं होते थे और वो जो है सदैव आकाश में जो है टकटकी लगा के देखते रहते थे, लेकिन आज समय बदल गया है, इसलिए हरी क्रांति भी आ गया है। कृषि उत्पादन वृद्धि के लिए बढ़ते एवं उपयुक्त रासायनिक उर्वरक का भी प्रभाव है। अगर आप आज के समय में देखा जाए तो कृषि में सबसे अधिक जो है रासायनिक उर्वरकों का उपयोग हो रहा है। कहते हैं ये उपयोग हमारे लिए विनाशकारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हरित क्रांति को हमने प्राप्त भी किया है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है श्वेत क्रांति। देखिए श्वेत क्रांति यानी ये दूध के उत्पादन की असाधारण वृद्धि से है। कहते हैं भारत में दूध की जो उत्पादन है कई मायनों में जो है बहुत अधिक बढ़ गई है और ये सब श्वेत क्रांति के कारण ही संभव हुआ है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय दूध ग्रिड का जो है गठन और क्षेत्रीय एवं मौसमी असंतुलन का निराकरण रणनीति है। तकनीकी आदानों में है स्वदेशी गायों के यूरोपीय नस्ल के ज़्यादा दूध देने वाले के साथ प्रजनन करवाना, यानी हाइब्रिड जो है गायों का जो है बनाना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। स्वदेशी गायों को यूरोपीय नस्ल के ज़्यादा दूध देने वाले गाय के साथ प्रजनन करा के हमने एक नया जो है गाय प्राप्त किया और इससे जो है दूध की उत्पादन काफ़ी भारत में बढ़ गया। लंबी अवधि तक रखने के लिए दूध की जो है हम पैस्चुराइजेशन करते हैं, जिसको हम पास्तुईकरण कहते हैं, यानी ये पैस्चुराइजेशन होता है। पैस्चुराइजेशन का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे कि आपके घरों में दूध आता है, बेरका का हो, ठीक है, चाहे कोई भी हो, अमूल हो, कोई भी दूध हो, सब के सब दूध जो होते हैं पास्तुईकरण कर रखा होता है, यानी इसको हम पैस्चुराइजेशन कर रखे होते हैं, उसमें से फैट निकाल रखे होते हैं, उसमें कई तरह के क्रीम निकाल रखे होते हैं और कीटाणु को भी हम उसमें नष्ट कर रखे होते हैं। तभी आप देखते होंगे कि लोग जो हैं दूध खरीदते हैं और मुंह में डाल के पी जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये पैस्चुराइज दूध होता है, तो ये हमें ख़राबी नहीं करता है। तो इससे क्या होता है, ख़राब भी जल्दी नहीं होता है। तो ये हमारे पास तकनीक आया है जिसके कारण हम दूध को लंबे समय तक रख सकते हैं। उसके बजाय ग्रामीण क्षेत्रों के सदस्यों में गुणवत्ता जो है दूध का संग्रह में, अब देखिए पहले ग्राम क्षेत्र में ये होता था कि दूध बहुत जल्दी खराब हो जाता था, लेकिन आज नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए साधनों के कारण गांव के दूध जो है शहरों में बहुत ही आसानी से पहुंच जाता है। ठीक है, ये तो रेल भी है, जहाज़ भी, बहुत तरह के साधन है, जिसके कारण जो है गाँव का दूध जो है शहरों में बहुत ही आसानी से और सरलतापूर्वक पहुँच जाता है, जिससे ये खराब नहीं हो पाता है।
उसके बाद है प्रतिष्ठित परिवहन प्रणाली से दूध को सड़क और रेल मार्गों द्वारा दूर महानगरीय केंद्र तक भेजने में मदद मिलती है। तो बात वही आ गई कि दूध को जो है सड़क और रेल मार्ग द्वारा जो है महानगरों में विभिन्न भागों में पहुंचाने का प्रावधान किया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है नील क्रांति। देखिए नील क्रांति यह ताजे पानी और समुद्री जल से मछली पकड़ने में बड़ी वृद्धि करने के लिए संदर्भित करता है। यानी नील क्रांति अगर मुख्य तौर पे देखें तो मछलियों के लिए है, लेकिन साथ में ये जो है नील की खेती के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। अगर आप नील की खेती उत्पादन वृद्धि को भी लिख देते हो तो एग्जामिनर गलत नहीं कहेगा, क्योंकि नील की क्रांति नील की खेती के लिए भी हुई थी और जो मछली उत्पादन में वृद्धि करने के लिए भी हुई थी। यानी नील क्रांति जो है दोनों के लिए पर्याप्त है। उसके पश्चात है पीला क्रांति। पीला क्रांति जो है निरंतर और आश्वासन कुक्कुट उत्पादों के आपूर्ति में संदर्भ में है। यानी ये मुर्गी उत्पादन में काफ़ी पोल्ट्री फार्म के जो है इसके लिए पीली क्रांति का जो है अनुसरण किया जाता है। और पीली क्रांति के अंतर्गत जो है मुर्गियों की पालन में हमने जो है 4 गुनी जो है काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। उसके बाद है गुलाबी क्रांति। इस नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा गुलाबी क्रांति यह हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्यों में विशेष रूप से सेब की उत्पादन में वृद्धि करने के लिए संदर्भित हुई है। यानी गुलाबी क्रांति जो है सेब के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं पीली क्रांति जो है कुक्कुट यानी पोल्ट्री फार्म मुर्गियों के उत्पादनों के वृद्धि के लिए पीली क्रांति का यूज़ किया जाता है। और नीली क्रांति जो है नील की खेती के लिए भी उपयोग किया जाता है और प्लस मछली के उत्पादन के लिए भी वृद्धि के लिए किया जाता है। वहीं अगर श्वेत क्रांति की बात करें तो वो दूध उत्पादन के लिए किया जाता है। और ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें, हरित क्रांति की बात करें तो वो कृषि के उत्पादन में वृद्धि के लिए समझाता है। तो ये सारे क्रांति काफ़ी महत्वपूर्ण थे और टॉपिक भी काफ़ी महत्वपूर्ण था और एग्ज़ाम व्यू से तो महत्वपूर्ण है ही है। तो इसको अच्छे से सुनिए, समझिए और देखिए और जो पॉइंट नोट करने वाला उसको नोट भी कीजिए। अगर आपको ये सब बात अच्छी लगी, समझ में आया, तो आपको एक कार्य करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो ये है कि इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे वो भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। और इसके लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप एड्रेस पर लगा देना है। ठीक दोस्तों, अगर आप एक कार्य कीजिएगा तो कई बच्चों जो ज़रूरी जिनको होगा उनको ये वीडियो मिल जाएगा, वो इससे लाभान्वित हो सकते हैं। लेकिन आपके द्वारा एक कदम न उठाने की वजह से एक बच्चा जो है, कोई भी बच्चा जो है इस वीडियो से लाभान्वित नहीं हो पाएगा, तो ये मुझे हमेशा खेद रहेगी। तो इसके लिए आपको अग्रसर होना ही पड़ेगा। इसमें सोचने की बात नहीं है और इतना कन्फ्यूज़ होने की भी बात नहीं है। कहते हैं जो अच्छी बात होता है उसको फैलाने में कभी भी नहीं होना चाहिए, शक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बात अच्छी है, ज़रूरी है। कहते हैं गलत बात अगर फैलाओगे तो आप दूसरे के समक्ष निंदा का पात्र भी बन जाओगे, लेकिन अच्छी बात फैलाओगे तो आप निंदा के पात्र कभी भी नहीं बन सकते। ठीक है, और पहली बार वीडियो तो देख रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, क्योंकि तिरपान स्टडी सेंटर 8th से लेके MA तक के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है। ठीक है, इसमें आपको जो है सभी सिलेबस टॉपिक्स और क्लास वाइज दिख जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। इसलिए सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।